Hello student, today our topic रेशो एनालिसिस। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस टॉपिक पर पिछले लेक्चर में हमने रेशो एनालिसिस के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को क्लियर किया था। सो स्टूडेंट, टुडे लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ रेशो एनालिसिस। First is, here is a first is current ratio. Current ratio equal to current assets upon current liability, and current ratio of 2:1 is considered satisfactory. Below 2:1 is not satisfactory. And second is liquidity ratio. The other name of liquidity ratio is acid test ratio and quick ratio. The formula is of current ratio liquidity ratio equal to liquid assets upon current liabilities, and where liquid assets equal to total current assets minus closing stock plus prepaid expenses. That means we can say that liquid assets means total current assets without closing stock and prepaid expenses, and the ideal level of liquidity ratio is 1:1. Below 1:1, liquidity ratio is not a satisfactory. And third is absolute liquidity ratio. Absolute liquidity ratio equal to absolute liquid assets upon quick liabilities. This ideal level of the absolute liquidity ratio equal to 0.5:1. And fourth is a cash ratio. Cash ratio means cash in hand plus cash at bank upon current assets. These are four ratio. First is current, second is liquidity, third is absolutely, or fourth is cash ratio. And now we start the numerical portion of current ratio, liquid ratio. So first question is, here is given current liabilities equal to 2 lakh and current asset is 3,20,000, and other information is stock is 1 lakh and prepaid expenses 20,000 and debtors 1,20,000. And now calculate the current ratio and liquidity ratio. And we know that current ratio equal to current assets and current liability. Here is given current asset is 3,20,000 and current liabilities is 2 lakh. So 3,20,000 divided by 2 lakh equal to 1.6:1. सो आप देख रहे हैं यहाँ पर करंट रेशो का स्टैंडर्ड 2:1 से कम आ रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन इट इज नॉट सैटिस्फैक्टरी। And again we calculate the liquid ratio, liquid assets to current liabilities, and liquid assets equal to total current assets minus stock and prepaid expenses. And given in question, current assets is 3,20,000 and stock 120 and prepaid 20,000. So 3,20,000
माइनस 1,20,000 इक्वल टू 2 lakh. So liquidity ratio equal to 2 lakh divided by 2 lakh equal to 1/1. एंड आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट कि लिक्विड रेशो का आइडियल रेशो है 1/1 और यहाँ पर हमारा आंसर 1/1 आया है। तो यहाँ जरूर हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड रेशो कि कंपनी की स्थिति अच्छी है, परंतु चालू अनुपात के आधार पर हम ये कहेंगे कि कंपनी की स्थिति सही नहीं है। अब आगे हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन गिवन करंट एसेट्स 1 lakh, स्टॉक 15,000, प्रीपेड 5,000, वर्किंग कैपिटल 52,000 और आपसे कहा गया है कैलकुलेट द एसिड टेस्ट रेशो। यहाँ हमको एसिड टेस्ट, और जैसा कि हमने यहाँ लिखा है कि लिक्विडिटी रेशो, एसिड टेस्ट रेशो एंड क्विक रेशो, ये तीनों नाम हो सकते हैं। तो यानी कि चाहे वो एसिड टेस्ट के नाम से दे, चाहे क्विक रेशो के नाम से दे, चाहे लिक्विडिटी के नाम से दे। तो यहाँ हमको कैलकुलेट करना है एसिड टेस्ट रेशो। तो एसिड टेस्ट रेशो में आप देखिए फार्मूला है एसिड टेस्ट रेशो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। अगेन जैसा कि हमने पढ़ा और हम जानते हैं कि एसिड टेस्ट रेशो वो टोटल करंट एसेट्स होती हैं जिसमें हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को शामिल नहीं करते। और क्वेश्चन में दिया गया है करंट एसेट्स 1 lakh, वह हमने लिख ली। और अलग से इंफॉर्मेशन दी है स्टॉक एंड प्रीपेड। स्टॉक जैसे कि स्टॉक में 15,000 दिया हुआ है, प्रीपेड 5,000 दी हुई है। तो 1 लाख में से ये दोनों 15 और 5 टोटल 20,000 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ हमारे पास लिक्विड एसेट्स आ जाती है 80,000। और अगेन वी नो दैट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एंड गिवन इन क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल 52,000 एंड करंट एसेट्स is 1 lakh minus current liability. So current liability equal to 1 lakh minus 52,000 equal to 48,000. तो अब हम इस क्वेश्चन में लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों कैलकुलेट कर चुके हैं। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं लिक्विड एसेट्स आई है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि करंट लायबिलिटी, और हमें कैलकुलेट करना है एसिड टेस्ट रेशो या लिक्विड रेशो, जिसका फार्मूला है लिक्विड एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो 80,000 डिवाइड बाय 48 इक्वल टू 1.67 रेशो 1। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1.6 आ रहा है एसिड टेस्ट रेशो और इसका स्टैंडर्ड है 1:1, तो उससे ज़्यादा आया है, इसलिए हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एसिड टेस्ट रेशो कंपनी की स्थिति अच्छी है। आइए एक बार फिर एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड इंफॉर्मेशन गिवन क्विक रेशो 1.5:1। करंट एसेट्स 1 lakh, करंट लायबिलिटी 40,000। यहाँ पे करंट एसेट्स दी, करंट लायबिलिटी एंड क्विक रेशो 3 इंफॉर्मेशन है और इन्होंने कहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे जो 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं उसमें ये पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए वी नो दैट क्विक रेशो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। जैसा कि हम जानते ही हैं कि क्विक रेशो जो है वो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी है। सो क्विक एसेट्स इक्वल टू क्विक रेशो मल्टीप्लाई करंट लायबिलिटी।
तो इसलिए हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि क्विक रेशो को मल्टीप्लाई कीजिए करंट लायबिलिटी से तो क्विक एसेट्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्विक रेशो 1.5 मल्टीप्लाई क्विक लायबिलिटी, ये हमारे पास करंट लायबिलिटी है 40,000, 40 मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल टू 60,000। तो ये हमारे पास यहाँ पर 60,000 आ गए। तो यहाँ हम कह सकते हैं हियर इज स्टॉक। हम फिर जानते हैं कि स्टॉक जो होता है टोटल करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, क्योंकि क्विक एसेट्स में स्टॉक इंक्लूड नहीं होगा और करंट एसेट्स में स्टॉक इंक्लूड होगा। यहाँ हम एक बात मान के चलते हैं कि करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं हैं, अर्थात इस कंपनी के पास कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है। तो इसलिए स्टॉक इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स इज 1 लाख एंड क्विक एसेट्स इज 60, सो बैलेंस इज फिगर 40,000 इज ए स्टॉक। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये हमारे सामने स्टॉक की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट, आपने देखा आज आपके सामने जो डिस्कस हुआ है वो लिक्विडिटी, लिक्विड रेशो, करंट रेशो, एब्सोल्यूट रेशो, और ये मैंने चारों फार्मूले यहाँ लिख दिए। उन पे बेस ये जो क्वेश्चन हैं वो आपके सामने डिस्कस किए। अब इसी तरीके के क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। उन क्वेश्चनों को आप करना, वो आपको असाइनमेंट के रूप में मैं आपको आपकी ग्रुप में भेज दूंगा। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट, आप इसकी तैयारी कीजिए और प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।